Namaskar dear learners, welcome to the MOOC course of Pharmacology 3, subject code 602 BP602T. I am Dr. Sardindu Kumar Mishra, Associate Professor at the Department of Pharmacology at Ramesh Institute of Vocational and Technical Education, Greater Noida. So, in previous lecture we have a brief detailed discussion over the immunosuppressants. Now, we are moving towards the immunostimulants. So, these are the second type of drugs which can use to enhance the, or you can say to increase the immunity of the body. In previous lecture we explored that in immunopharmacology we have two different terminologies, that is in immunopharmacology we have immunosuppressant and second one is immunostimulants. ठीक है ना, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में दो की बात की थी. फॉर व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्यूनोसप्रेसेंट्स वी यूज्ड mainly immunosuppressants in the autoimmune disorders, allergies as well as in the organ ट्रांसप्लांटेशन जो रिजेक्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए. ठीक है, अब यहाँ पर इन टुडेज लेक्चर वी हैव अ डिटेल्ड टॉक ओवर द इम्यूनोस्टिमुलेंट्स. अब बात आती है व्हाई वी नीड टू स्टिमुलेट द इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देयर आर वेरियस कंडीशंस स्पेशली डिजीज़ और डिसऑर्डर्स, ठीक है, वेयर द इम्यूनिटी इज़ कंप्रोमाइज लाइक ट्यूबरकुलोसिस, लाइक HIV, एड्स. ठीक है, तो इन कंडीशंस में जो हमारी इम्यूनिटी होती है दैट इज़ वेरी compromised. तो फॉर दैट पर्पज वी नीड टू एनहांस द इम्यूनिटी. पैरेलली वी ऑल्सो वांट टू इंक्रीज द इम्यूनिटी स्पेशली इन द चिल्ड्रंस. ठीक है, एंड फॉर दैट we can go for the immunization, vaccination to increase the immunity against with the certain type of you can say antigens or pathogens or the invaders. ठीक है, तो उनके अगेंस्ट के लिए भी हम वो ना हो हमें, for that purpose we can use the what the immunostimulants. The polio vaccine is a type of what you can say the immunostimulant agents. ठीक है, so basically immunostimulants are also known as the stimulant immunostimulators. ठीक है, now these are the substances which can stimulate the immune system by activating the components of the immune system. ठीक है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना यानी इंक्रीज कर देना बाय एक्टिवेटिंग द सेल्स विच आर द पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, लाइक GM-CSF. इट स्टैंड्स फॉर द ग्रेनुलोसाइट मैक्रोफेज. CSF जो हो गया आपका दैट इज द कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर. ठीक है ना, तो GM-CSF जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेल्स विच आर यूज्ड to produce the different type of macrophages and the immune cells. ठीक है, तो GM-CSF is very much required and for that we require the certain molecules, you can say the agents which can increase the production of GM-CSF that will lead to the production of the complement system and the component of the immunity. ठीक है, now classification we can divide immunostimulants in two parts. The first one is the specific immunostimulant. Now, the word specific is basically indicating the specificity towards the antigen. ठीक है, यानी कि एंटीजन के लिए जो इम्यूनोस्टिमुलेंट्स यूज किए जाएंगे, यानी जो पर्टिकुलर कोई एंटीजन आया और उसके अगेंस्ट में ही हमारी बॉडी इम्यूनिटी सेल्स को बनाना शुरू कर दे, तो दैट इज नोन एज द स्पेसिफिक इम्यूनोस्टिमुलेंट्स. वेयर एज द नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोस्टिमुलेंट्स आर indicating that they have not a specificity towards the antigen. They are you can say used in any type of conditions where the immunity is compromised, जहाँ immunity आपकी क्या हो रखी है, कम हो रखी है. ठीक है, now what are the main drugs, main molecules which we have going to cover in this lecture. So we have levamisole or it is also known as the tetramycol. ठीक है, थैलिडोमाइड इसकी एक अलग कहानी है जो आपने पहले बहुत सुनी हुई होगी और उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे. BCG वैक्सीन जो कि जब हम पैदा होते हैं तो उसके बाद ही हमको लगती है. BCG बेसिकली स्टैंड्स फॉर द बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन. ठीक है, तो बैसिलस जो है वो तो एक बैसिलाई है जहाँ से ये हमको आइसोलेट करते हैं, बेसिकली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस आइसोलेट करते हैं. एंड देयर आर टू साइंटिस्ट विच डिस्कवर्ड दिस वैक्सीन. ठीक है, उनके नाम पर पड़ गया ये CG. ठीक है, तो जो पहले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एल्बर्ट कैलमेट
और दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था ग्यूरेन, ठीक है। तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, ठीक है, वैक्सीन, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी द ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट में ये वैक्सीन जो है बहुत इफेक्टिव है। आपको आगे चलकर ट्यूबरकुलोसिस ना हो उसके लिए ये वैक्सीन काम करती है। तो ये आपके बॉडी में एक तरह का इम्यून सेल्स बना देती है जो कि आगे चलकर टीबी होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा हद तक कम कर देता है। बिकॉज वन टाइम टीबी इज द, यू कैन से द पेंडेमिक टू द वर्ल्ड, ठीक है। नाउ रिकॉम्बिनेंट साइटोकाइंस, जहाँ पर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और वहाँ पर हम जो साइटोकाइंस हैं, ठीक है, जैसे कि इंटरफेरॉन्स हो गए या इंटरल्यूकिन्स हो गए, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू द व्हाट, दिस विल लीड टू द एनहांसमेंट इन द इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसको हम अभी लेटर स्टेज पे एलोबरेट करेंगे और ज़्यादा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द इम्यूनाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द इम्यूनोस्टिमुलेशन, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वहीं से वो अपनी, मैंने आपको बताया था, एडेप्टिव इम्यूनिटी की स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। वो लर्निंग करना शुरू कर देता है, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना शुरू कर देता है, अपनी बॉडी को अगेंस्ट द इन्वेडर्स, आइदर इट इज़ अ टॉक्सिन, एंटीजन और एनीथिंग, ठीक है। नाउ what are the options we have available, ठीक है। तो we have the vaccines, there are various vaccinations, ठीक है, which we get to our child, ठीक है, और हम अपने बच्चे को करवाते हैं। उसके बारे में हम एक टेबल भी है जिसको डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो अलग अलग इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, इट इज़ IgG, IgD, IgA, IgE और IgM, ये तरह के अलग अलग टाइप के हैं। इनको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके एंड देन वी कैन यूज देम टू इंड्यूस द immunity or to activate the immunity, and the last one is the Rho-D immunoglobulin, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको Rho-D बोल रहे हैं, बट अगर आप थोड़ा सा बायोलॉजी में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप में हमने एक फैक्टर पढ़ा था, दैट इज नोन एज द RH फैक्टर, ठीक है ना। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RH फैक्टर? तो हमारा ब्लड ग्रुप होता है, सबको पता है, किसी का O होगा, किसी का B, A, AB, कुछ भी, ठीक है। बट उसके साथ एक ऊपर प्लस या फिर माइनस जुड़ जाता है, ठीक है, और दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर और एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। आइदर इफ द पॉजिटिव लिखा हुआ है अगर ब्लड ग्रुप के ऊपर, दैट मीन्स इट पजेस द RH फैक्टर, एंड इफ देयर इज O which is having a superscript on the blood group, then you can say it is the absence of RH फैक्टर। अब यहाँ पर ये, क्योंकि इसका थोड़ा कनेक्शन बनाना है, रिलेवेंस बनाना है कि क्यों ये यहाँ पर ये बातें कर रहे हैं। तो जनरली होता क्या है कि एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं थाइमोसाइटिक परप्यूरिया, ठीक है। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और जनरली न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखने को मिलता है, जिसमें बॉडी जो है वो एकदम नीली पड़ जाती है। नाउ what is the logic, what is the reason behind this, what is the causative factor behind this? तो there is a interaction between the blood group between the mother and the newborn baby, जो इन्फेंट पैदा हुआ है उसके और मदर के ब्लड ग्रुप में इंटरेक्शन होने लगता है। इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ द RH फैक्टर, ठीक है। मदर RH नेगेटिव है और अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो हैं व्हाट दे कैन डू, दे कैन इंटरैक्ट, और बच्चे की बॉडी जो है वो मदर की बॉडी को एज ए एंटीजन ट्रीट करेगी और उसके अगेंस्ट में तुरंत ही क्या बनाने लग जाएगी, एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी, एंड दैट विल लीड टू द डैमेज ऑफ द RBCs, ठीक है ना। इसमें RBCs जो हैं वो बच्चे के बॉडी में डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। एंड दिस विल लीड टू द वेरी सीवियर कंडीशन विच आई ऑलरेडी मेंशन, दैट इज थाइमोसाइटिक परप्यूरिया, ठीक है ना। ये एक डिजीज़ है जिसमें बॉडी जो है आपका खून जो है वो एकदम ब्लू होने लग जाता है, ठीक है। तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन, ठीक है ना, ये एक हम प्रिकॉशनरी मेजर की तरह से करते हैं, हाँ, ये इट इज़ अ प्रोफाइलैक्टिक स्टेप, इट इज़ नॉट अ क्योरेटिव स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो क्योंकि हम ब्लड टेस्ट करते रहते हैं माँ का, ठीक है, तो अगर हमें ब्लड टेस्ट के दौरान पता चलता है कि सी इज़ RH नेगेटिव एंड the fetus is RH positive, in that particular condition what we can do, we can give the RHO immunoglobulin to the mother during the pregnancy and just आफ्टर द बर्थ ऑफ द प्रेगनेंसी, ठीक है। हम ध्यान रखते हैं कि प्रेगनेंसी के पहले भी दे सकते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान भी, और अगर बाई चांस मिस कर गया कोई कंडीशन में तो तुरंत भी हम उनको दे सकते हैं। एंड व्हाट इट कैन डू, इट कैन न्यूट्रलाइज दिस पर्टिकुलर इंटरैक्शन। ये क्या करेगा, उस इंटरैक्शन को न्यूट्रलाइज करके हमारी बॉडी को प्रिवेंट कर देगा अगेंस्ट द थाइमोसाइटिक
परप्यूरिया, ठीक है ना। तो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दिया मैंने आपको, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग विद द लीवामिसॉल, ठीक है। नाउ द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड एज ए इम्यूनोस्टिमुलेंट, दैट इज द लीवामिसॉल। नाउ लीवामिसॉल टेट्रामिसॉल में बस फर्क इतना है कि लीवामिसॉल जो है इट इज़ द आइसोमर ऑफ द टेट्रामिसॉल, ठीक है। टेट्रामिसॉल जो है वो है एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड, वेयर एज लीवामिसॉल जो है वो है एक लीवोरोटेटरी, ठीक है। तो एल जो लगा हुआ है दैट इज इंडिकेटिंग इट्स रोटेशन, ठीक है ना। आइसोमर है तो इसका मतलब है कि आपने डेक्स्ट्रो और लीवो आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप जानते हैं कि लीवोरोटेटरी का मतलब हो गया कि इट हैज़ अ डिफरेंट अरेंजमेंट, मतलब सर्कुलेशन, ठीक है ना। नाउ लीवामिसॉल बेसिकली इट वाज सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट पर्टिकुलर हेलमेंथिक इन्फेक्शंस, ठीक है ना। अब जब लीवामिसॉल को डिस्कवर किया गया था तो एट दैट मोमेंट द साइंटिस्ट विच वाज वर्किंग ऑन लीवामिसॉल ना, उसने इसको डिस्कवर किया था फॉर द अगेंस्ट द और फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। आपके बॉडी में जो कीड़े पड़ जाते हैं या आपके शरीर में जो कीड़े जो जिसको आप कहते हो कि वॉर्म्स आ गए हमारे शरीर में, रिंग वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, एस्कैरिस, ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट में यूज़ करने के लिए उन्होंने बनाया था। बट जब उन्होंने इसकी मैकेनिज्म स्टडी करना शुरू किया तो व्हाट दे सॉ कि इट हैज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ द इम्यूनिटी सेल्स, स्पेशली बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। उनको ये क्या कर रहा था, रिस्टोर कर रहा था। यानी कि अगर किसी की बॉडी में टी और बी लिम्फोसाइट्स का लेवल कम हो रहा था तो लीवामिसॉल चलाने से क्या फ़ायदा देखने को मिला हमें कि इट विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली द लेवल ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और जब उन्होंने ये देखा तो इसका एक यूज़ और साथ में एक्सप्लोर हो गया, दैट इज़ द व्हाट, इम्यूनो स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो जनरली इसका जो नेचर है वो है एंट हेलमेंथिक, यानी कि जो हेलमेंथिस है एक पूरा जैनर है, एक पूरा ग्रुप है पैरासाइट्स का, तो हेलमेंथिस के अगेंस्ट में हम इसको यूज़ करते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो यूज इन द इम्यूनोस्टिमुलेंस पर्पस, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन रिस्टोर द डिप्रेस्ड इम्यून फंक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स, पैरेलली इट ऑल्सो इंक्रीज द लेवल ऑफ मोनोसाइट्स एंड द मैक्रोफेजेस, ठीक है ना। नाउ लीवामिसॉल इज द लीवोआइसोमर, मैंने पहले बता दिया, एंड व्हाट इट कैन डू, इट कैन रिस्टोर द फंक्शन ऑफ डिप्रेस्ड टी सेल, ठीक है ना। जो डिप्रेस्ड टी सेल है उसके एक्टिविटी को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। अब आप कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो, तो एक तो इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैलिग्नेंसी में, कैंसर में, ठीक है ना। लीवामिसॉल जो है वो टी सेल और बी सेल्स को इंक्रीज करता है उसके लेवल को, जिसकी वजह से जो कैंसरस सेल हैं उनको उनकी फैगोसाइटोसिस जो है वो बढ़ जाती है और उसको वो किल करने लग जाता है। पैरेलली इट ऑल्सो यूज इन द एपैथस अल्सर। एपैथस अल्सर का मतलब हो गया कि आपके मुंह में एक छोटा सा घाव हो जाएगा, ठीक है, और धीरे धीरे वो घाव है जिसको हम सोर कहते हैं, ठीक है ना, वो बढ़ता जाएगा और एक अल्सरेटिव कंडीशन में आ जाएगा, मतलब उसके अंदर पस और बाकी जो माइक्रोवेल इन्फेक्शंस हैं वो देखने को मिलेंगे। तो दैट इज नोन एज द, तो यू कैन से द माउथ अल्सर इज नोन एज द एपैथल्स अल्सर, ठीक है ना। रिकरेंट हर्पिस, हर्पिस वायरस की वजह से होने वाला हर्पिस जो है, ठीक है, ये अगर बार बार हो रहा है तो वहाँ पर भी हम लीवामिसॉल यूज़ करते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, क्योंकि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट क्या कर रहा होता है, वो इम्यूनिटी को डिप्रेस कर देता है, ठीक है। तो फॉर दैट वी कैन यूज़ द लीवामिसॉल, एंड इट इज़ ऑल्सो सजेस्टेड एज अ डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट, ठीक है ना, इन रिमेटाइड आर्थराइटिस, ठीक है ना। जब हमने रिमेटाइड आर्थराइटिस पढ़ा था तो उस टाइम पे हमने बात किया था डीएमआरडी क्लास की, ठीक है, यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक एजेंट्स की, जिसमें कि लीवामिसॉल इज ऑल्सो द नेम, ठीक है। नाउ अब मैकेनिज्म की बात करें तो व्हाट दे कैन रेज द सीजीएमपी लेवल थ्रू द थ्रोम्बो मतलब बाय बाइंडिंग विद द थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये उसके लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है। एंड दिस विल लीड टू द व्हाट द इनएक्टिवेशन ऑफ द सीएमपी, ठीक है, और सीएमपी टूटने लगेगा, ठीक। लेटर ऑन दिस इंक्रीज्ड सीजीएमपी लेवल विल induce the lymphocyte proliferation, and this lymphocyte proliferation is very effective to tackle out the invasions, ठीक है ना, उनको tackle out करने के लिए यूज़ करते हैं। पैरेलली इट ऑल्सो इंक्रीज द एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है, एंटीबॉडी बनाने लगेगा, लिम्फोकाइन का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, और फैगोसाइटोसिस जो कि मैक्रोफेज का जिम्मेदारी था उसको भी ये क्या कर देगा, एनहांस कर देगा। नाउ द नेक्स्ट वन, द वेरी फेमस ड्रग विच इज मतलब आप कह सकते हो इसने इट इज़ अ ड्रग विच इज़ अ हिस्ट्री मेकर, ठीक है, थैलिडोमाइड।
थैलिडोमाइड के साथ पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी कम है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हैं, बिकॉज थैलिडोमाइड ट्रेजेडी इज इटसेल्फ अ वेरी ट्रैजिक कंडीशन, हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है ये, ठीक है। तो बेसिकली जब थैलिडोमाइड डिस्कवर किया गया था तो इट इज़ अ वेरी गुड ड्रग फॉर द मॉर्निंग सिकनेस। द प्रेग्नेंट वीमेंस हैव अ वेरी कॉमन टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग इन द मॉर्निंग एंड दैट इज नोन एज द मॉर्निंग सिकनेस। सो एनेक्जियोलाइटिक और एंटीमेटिक ड्रग की तरह इसको मार्केट में लाया गया था और ये वहाँ पर लोगों को दिया भी गया, बहुत सारे लोगों को। लेकिन 1960s में ये एक बहुत बड़ा, एक आप कह सकते हो जीनोसाइड हुआ, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो पैदा हुए उसको कंज्यूम करने के बाद थैलिडोमाइड को, मदर के, ठीक है, दे हैव द व्हाट, द कंडीशन विच इज नोन एज व्हाट, द सील लिम, ठीक है ना, सील लिम होने लगे, मतलब कि उनके जो लिम्स थे वो छोटे छोटे होने लगे, मतलब, ठीक है। तो दैट इज नोन एज द मतलब कंडीशन, ठीक है ना, ये हमको देखने को मिला, ठीक। फोकोमेलिया इसको हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। व्हाट दे कैन डू, दे कैन एनहांस द टी सेल प्रोलिफरेशन, ठीक है। पैरेलली दे कैन आल्सो इंक्रीज द इंटरल्यूकिन 2 एंड इंटरफेरॉन वाई, सॉरी गामा, ठीक है, इसके लेवल को ये बढ़ाते हैं। नाउ दे आल्सो इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है ना। नेचुरल किलर सेल्स जो हैं दे हैव अ वेरी यू कैन से गुड सेल्स टू टारगेट द कैंसर, ट्यूमर, ठीक है ना, ट्यूमर को टारगेट करने के लिए ये बनाए गए हैं। तो नेचुरल किलर सेल्स के लेवल को भी ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो एक्सेसिव कैंसर होता है वो सप्रेस हो जाता है। दे आर वेरी कॉमनली यूज इन द मल्टीपल माइलोमा, ठीक है। इसके साथ साथ ये यूज किया जाता है लेप्रोसी में। लेप्रोसी में भी दो तरह की लेप्रोसी होती है, जिसमें कि ये यूज़ किया जाता है ENL, दैट इज एरेथ्रेमा नोडोसम लेप्रोसी, ठीक है ना, उसमें ये यूज़ किया जाता है। व्हाट दे कैन डू, इट कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ TNF अल्फा इन द पेशेंट, स्पेशली HIV पॉजिटिव, ठीक है। जो HIV पॉजिटिव है उसके अंदर TNF अल्फा के लेवल को बढ़ाता है। अब TNF अल्फा का लेवल जो बढ़ेगा तो इसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है उसके साथ भी कुछ चेंजेस होंगे, ठीक है ना। बट इसकी टेरेटोजेनिसिटी जो है वो एक मेजर साइड इफेक्ट है, ठीक है, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल बहुत प्रिकॉशंस के साथ यूज़ किया जाता है। बहुत मतलब प्रेग्नेंट लेडीज में तो ये बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द BCG वैक्सीन, दैट इज स्टैंड्स फॉर द बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, ठीक है ना। ये तो बैक्टीरिया से मिला इसलिए इसका नाम ये पड़ा। कैलमेट पहले साइंटिस्ट थे और ग्यूरिन उनका कोवर्कर था, दैट्स वाई इसका नाम ही पड़ गया BCG वैक्सीन। नाउ इट इज द लाइव कल्चर ऑफ द माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस का ये लाइव कल्चर है एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन फ्यूचर, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन इंड्यूस द ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम BCG का वैक्सीन देते हैं ना तो उस जगह पर एक ग्रेनुलोमा बन जाता है, थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है, फीवर आता है आपकी बॉडी में, ठीक है, सीवरिंग होती है, ये सब बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, देखने को मिलते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड एज ए इम्यूनोलॉजिकल एनहांसर टू स्टिमुलेट द इंटैक्ट इम्यून सिस्टम, दैट इज द नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यूनोस्टिमुलेशन, ठीक है ना। BCG and its methanol extract residue is very effectively used for the vaccination, ठीक है ना, वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। T lymphocytes are the primary target for the activity of BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन का जो रोल है वो प्रोलिफरेशन करता है T lymphocytes का, जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो हमारी स्ट्रांग होती है। नाउ व्हाट इट कैन कॉज, इट कैन इंड्यूस द स्टिमुलेशन ऑफ मैक्रोफेज फंक्शन, यानी फैगोसाइटोसिस को बढ़ाएंगे ये। इसके साथ साथ ये लाइसोसोमल एक्टिविटी को बढ़ा देंगे, यानी कि डाइजेशन को बढ़ा देंगे, बैक्टीरिया और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं। इट कैन इंड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ द लिम्फोसाइट एक्टिवेटिंग फैक्टर रिजल्टिंग इन द फेज 1 इम्यून रिएक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ इट्स एक्टिविटी अगेंस्ट ट्यूमर एंटीजेंस, नाउ दे हैव अ वेरी बेनिफिशियल इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट, द लंग एंड द ब्रेस्ट कैंसर। दे हैव ऑल्सो इम्प्लीकेशन in the acute lymphoblastic leukemia as well as the myelogenous leukemia. Now they have available in unlyophilized, live और killed lyophilized form, ठीक है, यानी कि BCG वैक्सीन हर तरह से अब मिल रहा है, lyophilized भी है, unlyophilized भी है और लायोफिलाइज्ड में लाइव्ड और किल्ड भी है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन हम उसको यूज़ करते हैं। नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द BCG वैक्सीन, नाउ दे हैव अ वेरी गुड against the proliferaxis as well as the curative treatment of cancer of urinary bladder as well as the cancer of papillary tissues, ठीक है ना। what are the side effects, तो मैंने आपको बताया फीवर आना, कमजोरी होना, चिलिंग होना, that is the very
कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द BCG वैक्सीन। नाउ इंटरफेरॉन्स की अगर हम बात करें तो नाउ दे हैव, बिकॉज इंटरफेरॉन्स इटसेल्फ इज अ प्रोटीन, ठीक है, तो ये एक लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन्स हैं, स्पेशली अगर हम कहें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ठीक है, और इनका जो क्लास है, किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो इट बिलोंग्स टू द साइटोकाइंस, ठीक है ना। नाउ व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड, तो जनरली दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट सेल्स, स्पेशली इन द कंडीशन व्हेन वायरस अफेक्ट्स आवर बॉडी, ठीक है। तो हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन का लेवल बढ़ने का मतलब ही है कि आपकी बॉडी में क्या हो रखा है, वायरल इन्फेक्शन हो रखा है, ठीक है, ओके। सो अब वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके अगेंस्ट में क्या करना होगा, आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करना होगा, एंड फॉर दैट पर्पज इंटरफेरॉन्स वर्कआउट, ठीक है ना। व्हाट दे कैन डू, दे कैन बाइंड विद द सेल सरफेस रिसेप्टर, सेल पे सरफेस पे ही आपको जो रिसेप्टर उससे बाइंड करेगा, और रिसेप्टर पे बाइंड करने के बाद ये एंजाइम इंडक्शन कर देगा, ठीक है। अब उस एंजाइम के इंडक्शन की वजह से जो सेल प्रोलिफरेशन हो रहा था, किसका सेल प्रोलिफरेशन, वायरस का, ठीक है ना, जो वायरस आपकी बॉडी में एंटर किया उसका जो सेल प्रोलिफरेशन हो रहा था वो डाउनग्रेड होगा, जिसकी वजह से वायरल रेप्लिकेशन जो है वो भी डिक्रीज होगा, एंड जो वायरस बच गए, क्योंकि अब रेप्लिकेशन नहीं हो रहा, वायरस की कॉपीज नहीं बन रही हैं, तो अब क्या होगा, जो बचे हुए वायरस हैं उनको ये क्या कर लेगा, फैगोसाइटाइज कर लेगा, यानी उसको वो खा लेगा, ठीक है, और खाने के बाद उनको लाइसोजाइम उसको तोड़ के और उसको बॉडी से स्पिट आउट कर देगा। नाउ इंटरफेरॉन अल्फा 2b की अगर हम बात करें तो दे हैव अ वेरी गुड एक्टिविटी अगेंस्ट द हेरी सेल ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट मेलानोमा, काप्सी सार्कोमा एंड क्रोनिक हेपेटाइटिस बी, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत इफेक्टिवली काम करते हैं, बट स्टिल दे हैव सम साइड इफेक्ट्स लाइक फ्लू लाइक सिंड्रोम्स। जब आप इसको दोगे इंटरफेरॉन को तो ये फीवर, मैलेस यानी कमजोरी, थोड़ा सा हेडेक कॉज करेगा, इसके साथ साथ ये इसमें ब्लड प्रेशर को ये फॉल कर देता है, गिरा देता है, ठीक है, हाइपोटेंशन जैसी कंडीशन बनती है, एंड समटाइम्स द डिप्रेशन इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, ठीक है। नाउ इंटरल्यूकिन 2 की अगर हम बात करें, विच इज ऑल्सो नोन एज द एल्डेसिल्यूकिन, इट इज यूज्ड फॉर द प्रोलिफरेशन ऑफ द सेलुलर इम्यूनिटी, स्पेशली किस तरह के, जो कि सेल से मिलती है, और कौन से हैं वो, लिम्फोसाइट्स, eosinophils as well as the cytokines like TNF alpha, interleukin 1 and the interferon gamma, ठीक है। Now what they can do, they can also differentiate। अब टी सेल्स की अगर हम बात करें तो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, किलर टी सेल्स होते हैं, बहुत सारे टी सेल्स होते हैं, तो उनका डिफ्रेंसिएशन जो है वो कौन करता है, इंटरल्यूकिन 2 करता है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, तो वी हैव द ऑप्शंस टू यूज इन द मेटास्टैटिक रीनल कार्सिनोमा। मेटास्टैटिक का मतलब अब बॉडी के हर पार्ट में वो फैल रहा है, ठीक है ना, तो ये आपको समझना है। देयर आर 2 टाइप ऑफ कैंसर, बिनाइंग एंड द मेटास्टैटिक, ठीक है ना, तो या मैलिग्नेंट। हाँ, तो मैलिग्नेंट कैंसर में जो होता है वो क्या हो जाता है, कैंसर का जो इन्फेक्शन है, जो कैंसर है वो पूरी बॉडी में फैलता है। इसके साथ साथ ये मेलानोमा जो हमारे स्किन का कैंसर, उसमें भी ये यूज़ किया जा सकता है। नाउ स्टिल इसका भी वही साइड इफेक्ट है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, फीवर, मैलेस, हेडेक, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स जो हैं देखने को मिलता है। नाउ द एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज द वन ऑप्शन, ठीक है। व्हाट इट कैन डू, इट कैन इंप्रूव अवर एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज मोर एफिकेशियस, ये ध्यान रखिए आप, बिकॉज अभी आप देखो तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोरोना वैक्सीन ले रहे हैं, कोविड की वैक्सीन ले रहे हैं ना, तो व्हाट वी आर इंड्यूसिंग बिकॉज हम वेट नहीं कर सकते कि हमारी बॉडी में अपने आप इन्फेक्शन होगा, फिर उसको हम लर्न करेंगे, उसके बाद हमारी इम्यूनिटी बनेगी, है ना। फॉर दैट पर्पज व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इन्फेक्टिंग अवर बॉडी विद द वायरस, कोविड वायरस, ठीक है, और उससे इन्फेक्ट करके हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हैं, दैट इज नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है ना। नाउ पहला जब हम इंजेक्शन लिया था, हमने पहला डोज लिया था, तो वो कौन सा डोज था, वो माइनर डोज था, मतलब जो बूस्टर डोज होता है उसका हाफ डोज हमने वहाँ यूज़ किया था, और फिर जो सेकेंड डोज था दैट इज़ द बूस्टर डोज, ठीक है ना, और इसका एक टाइम पीरियड है, आपने देखा होगा 3 महीने का, ठीक है। नाउ एंटी कैंसर वैक्सीन भी आती हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो हेपेटाइटिस का कैंसर, मतलब लीवर का कैंसर के अगेंस्ट में काम करना है, हर्पिस के अगेंस्ट काम करना है, तो उसके अगेंस्ट में भी जो वैक्सीन आती हैं वो भी बहुत इफेक्टिवली यहाँ पर काम करती है। नाउ दिस इज द टेबल, आई थिंक इट इज़ नॉट readable very clearly, but you can take the screenshot and then zoom it out, huh? So I am elaborating this table for you. So the first vaccine which is very essential, which is given at the time of birth, and it is BCG. आपको बर्थ में ही देना है, पैदा होते सबसे पहला वैक्सीन यही लगेगा, ठीक है, और अगर छूट गया तो साल भर के अंदर ही आपको लगाना है। एंड इसका जो पहला डोज होगा, जो माइनर डोज होगा, वो 0.1 ml होगा, ठीक है, और फिर बाद में इसका बूस्टर डोज भी हम लगाते हैं। इसको हम देते हैं बेसिकली, आप कह सकते हो कि
हाँ, बच्चों के हाथ पे, ठीक है, या फिर कुल्ले पे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। इसको हम बच्चे को देते हैं जब पैदा हुआ उस टाइम पे, और उसके बाद फिर आप इसको 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पर रिपीट करते हो, ठीक है। 2-2 ड्रॉप्स आपको हर बार देने हैं, इसको हम ओरली देते हैं। DPT इज स्टैंड फॉर द डायप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस। इसके लिए हम इसका भी हम 3 डोज में काम करते हैं। तो पहले माइनर डोज देते हैं DPT 1, DPT 2, 3, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे 0.5 ml इंजेक्शन देना होता है, और वो भी इंट्रामस्कुलर रीजन पे। हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीन भी हम देते हैं हेपेटाइटिस बी में, जिसमें कि हम एक तो बर्थ के टाइम पे ही देते हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, फिर उसको 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे 0.5 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। मिजल्स जो है उसके लिए भी वैक्सीन है, जो कि 9 महीने कंप्लीट होने पर दिया जाता है, एंड इट इज़ गिवन थ्रू द सबक्यूटेनियस रूट इन द क्वांटिटी ऑफ 0.5 ml। विटामिन ए का भी लोग देते हैं 9 महीने पूरे होने पे, बट दैट इज नॉट मतलब कंपलसरी। DPT बूस्टर अब लगा, अब आपको DPT बूस्टर 6 हफ्ते में लगा था, अब आपको 2 साल और उसके बाद फिर 6 साल पे दोबारा से एक डोज लेना है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। ओरल वोलियो वायरस फिर 2 साल पे, लास्ट डोज हमने लिया था 14 हफ्ते पे, उसके बाद फिर 2 साल कंप्लीट होने पे लेना है, 2 ड्रॉप, ये भी पर ओरल जाता है। विटामिन ए आप ओरल रूट से लेते हो, ठीक है। टेटनस का आपको 10 और 16 साल पे 2 बार वैक्सीनेशन कराना होता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस, अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहाँ पर एंडेमिक है एक डिजीज़ जापानीज एन्सेफेलाइटिस, तो वहाँ पर आपको 12 महीने 2 साल के कंप्लीशन पे, बच्चे के 2 साल के होते ही आपको ये इंजेक्शन लगाना होता है सबक्यूटेनियसली, ठीक है। TT का बूस्टर डोज प्रेगनेंसी में लगता है और उसके बाद भी लगता है, ठीक है। तो ये पूरा एक वैक्सीनेशन चार्ट है विच इज़ अवेलेबल फॉर चिल्ड्रंस एज वेल एज द नियोनेट्स। नाउ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर द ड्रग्स विच आर बेसिकली यूज टू प्रिवेंट द इम्यूनोडेफिशिएंसी, ठीक है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो रेबीज और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन है वो बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है। नाउ व्हाट दे कैन डू, दे कैन हैव अ स्पेसिफिक एज वेल एज द नॉन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज द कंक्लूजन। नाउ वी डिस्कवर्ड द इम्यूनोफार्माकोलॉजी, ठीक है, जिसमें हमने इम्यूनोसप्रेसेंट की बात की और इम्यूनोस्टिमुलेंट्स की बात की। इम्यूनोसप्रेसेंट वहाँ चलेंगे जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी हाइपर एक्टिवेट हुई है, ठीक है, जैसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, और इम्यूनोस्टिमुलेंट्स वहाँ चलेंगे जहाँ हमारी इम्यूनिटी जो है क्या है, कमज़ोर है, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर योर डिटेल्ड स्टडी एंड